जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ता विभूषणं अमरकृत्योच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमति जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादार रातुल चरणे हमारा भूमि कोटि कोटि बार प्रणाम जानाई। उपस्थित समस्त दादा और मायदेर आमार आंतरिक जय गुरु ভালোবাসা জানাই। যাক, এইভাবে যে পাঁচ ভায়া উপযোজনা কেন্দ্রে অনলাইনের মাধ্যমে এই সৎসঙ্গটা চলেছে, তা ঠাকুরের পরম দয়ার কথা। এত প্রচেষ্টা করে এই ছোট জায়গার মধ্যে বিভিন্ন জায়গার লোক একত্রিত হয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের গুণকীর্তন করছে, খুব ভালো লেগেছে। যাই হোক, পরম দয়াল এই সংসারে যখন আমাদের বাঁচা বাড়ার পথ দিয়েছেন, এই সৎসঙ্গের প্ল্যাটফর্ম আমরা যখন প্রবেশ করেই গেছি, তখন কিন্তু প্রত্যেককে সৎসঙ্গের নীতিবিধি কিছু কিছু পালন করে চলারই আমাদের নীতি আছে। দেখুন, কিন্তু নিয়ম আছে, কিছু না কিছু নীতি নিয়েই চলছে। প্রত্যেকটা মানুষ নীতি নিয়ম পালন করেই চলছে। নীতি নিয়ম মানে মোটা উদাহরণ আমরা যদি বলে থাকি, এই যে হয়তো ওদের মানে যে কোনো কাজটা করা হোক, মানে ঠিক ঠিক নিয়ম পালন করা, মানে যেমন মনে করুন একটা লেবার কোনো কাজ করছে, ওর যা রেট আছে সেই হিসাবে ওকে পেমেন্ট দেওয়া। এইটা তো আমরা সবাই জানি। এই যে সামান আপনি তরকারি পরিবা বাজার থেকে কিনা বিকা করবেন, আপনি যাবেন ওর কাছে সামানটা ওজন করে 1 কিলো নিলেন, তো আমরা 1 কিলোর পয়সাটা দিই। আমরা যদি ওকে সামানটি নিয়ে পয়সা না দিই, সেইটাও নিয়ম মানে। এইটা তো আমরা প্রত্যেকে দীক্ষিত হোক অদীক্ষিত আমরা করি। তো সেই নিয়মটাকে ঠিক ঠিক কাটাই পালন স্পেশালি আমাদের বলে দিয়েছেন, যাতে আমরা সেই যারা দীক্ষা না নেই তাদের নিয়মটা পালন করলে কি হয়, ওরা অজান্তে করে আমরা কি করছি না করছি, ধর্মের নিয়ম, এই নীতি নিয়ম, ঈশ্বরের যে বাঁচা বাড়া নিয়ম, হয়তো আমরা ধর্মকর্ম করছি, দুর্গা পূজা করছি, কালী পূজা করছি, সবকিছু করছি, বৎসরে একদিন হয়তো হরিনাম সংকীর্তন করছি, আমরা বৎসরে একদিন হয়তো দুর্গা মাকে উপাসনা করি, খুব সুন্দরভাবে মা পূজা করি, আর বাকি 365 দিনের মধ্যে একদিন আমরা হয়তো উপাস করলাম, আর বাকি 364 দিন আমরা আমাদের মতো করে করলাম, তাতে আমাদের ফল হলো না। এইরকম ভাবে যদি মনে করুন আমরা এইরকম ভাবে করে থাকি, তো আমরা তাহলে আর ফলটা পাবো কি? আমরা হরিনাম সংকীর্তন যদি করে থাকি, খান পানের ব্যাপার যদি করে থাকি, আমরা যেদিন গ্রামে হরিনাম সংকীর্তন নাম সংকল্প চালু হয়ে থাকে, তো সেই দিনে হয়তো আমরা দেখবেন যে আমরা গ্রামে কেউ নিরামিষ ভোজন করে, কেউ মানে আমিষ করে না, কেননা হরিনাম সংকীর্তন চলছে সেইখানে। আর যেদিন আমাদের সাঙ্গ হয়ে যায়, হরিনাম সংকীর্তন শেষ হয়, তারপরের দিন থেকে আপনার খান পান যে রকম করছেন সেই রকম চলছে। তো তাহলে ওই ওদিন ওরা জানে সব ঠিক, যে আমরা হরিনাম সংকীর্তন ভগবান এইটা বারণ করেছেন, এইটা আমাদের না খাওয়াই উচিত, আমিষ ভোজনটা। কিন্তু
ওরা ওটা জানে এবং মানেও। কেমন করে মানে? ওই যে হরিনাম সংকীর্তন যখন গ্রামে চলতে থাকে তখন আমরা গ্রহণ করি না, তারপরে যেদিন থেকে আমাদের শেষ হয়ে যায় কীর্তন হরিনাম সংকীর্তন, তারপরের দিন থেকে আবার চালু হয়ে যায়। তো ওই রকম যে ওরা, তার মানে ওরা জেনেও অজানা হয়, এইখানেই পার্থক্যটা রয়ে গেছে। এই যে শ্রী শ্রী ঠাকুরের আমরা যারা সৎসঙ্গের সান্নিধ্য লাভ করেছি, এই সৎসঙ্গে এলে তিনি যা যা বিধি দিয়েছেন সেটাকে ঠিক ঠিক পালন করা হয়। মানে প্রত্যেক দিন মানে কাঁটায় কাঁটায় পালন করা হয়। এই হরিনামের কথা যে বলা হচ্ছে, আমরা তো ওই একটা কথা চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, একবার হরিনাম নিলে যত পাপ তরে, জীবের সাধ্য নয় অত পাপ করে। তাহলে যুগপুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর এই যে নামের কথা দিয়েছেন, এই নামটা আমরা দীক্ষা নেওয়ার সময় সংকল্প করে থাকি, সারা জীবনের মতো জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফল এইটা আমরা পেয়েছি। তো যাই হোক, এই যে সারা জন্মের মতো আমাদের যতদিন জীবনটা আছে ততদিনের মতো সংকল্প করেছি শ্রী শ্রী ঠাকুরের। আমরা এইভাবেই আমরা যেমন নাম করব, এই সতনাম আমরা পেয়েছি, সব সময় আমরা নাম করে থাকবো। আমরা যেমন কীর্তন হরিনাম অষ্টম প্রহর, 24 প্রহর, নবরাত্রি, পঞ্চম রাত্রি, যাই হোক আমরা সংকল্প করে থাকি, ঠিক কিন্তু ততক্ষণ আমরা পূরণ করেই থাকি। এখানে দীক্ষিত অদীক্ষিতর ব্যাপার নাই। ওই যখন আমরা সংকল্প করে থাকি আমরা পঞ্চম রাত্রি কি 24 প্রহর কীর্তনটা করতেই হবে, সেটা একদম মূর্খ পণ্ডিত জ্ঞানী গুণী সবাই জানে, ওই রকম ভাবেই আমরা করে থাকি, এইভাবেই চলছে। আর এই যে ঠাকুরের সংকল্প করেছি সারা জীবন, আমাদের প্রত্যেক দিন এই যে নাম মোহে আমরা করেছি, এই সংকল্পটাকে আমরা কিন্তু তখন আর মনে করতে পারছি না কোন জিনিসটা। উনি যেটা এই যে, কিন্তু এইটাই সত্যি, আমরা শুনেই আমরা করতে পারছি না। যাই হোক, আমরা জানি প্রত্যেকেই মানে অজানা হয়ে আমরা পড়ে আছি, যার জন্য আমরা এই মানে এই যুগ মানে ভালো আমরা জীবনের মতো আমরা ঠিক গড়ে উঠতে পারছি না। যে ঠাকুরের তো হাজার হাজার বাণীর মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তো এইগুলা কি? তো তার মানে আমরা ঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। আমরা সৎসঙ্গ করছি ঠিক বটে, কিন্তু তার মতো করে হয়ে উঠতে পারছি না এখনো। তো যাই হোক, এই যে ঠাকুরের কথা মানে তিনি যা বলে দিয়েছেন তার মানে সেই রকম হিসাবে যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু আমাদের কিছু হয় না। তো ওই জন্যই এই যে সৎসঙ্গ এই বর্তমান সময়ে এই যে দাদার দয়ার কথা বলছেন, যে তিনি এই অনলাইনের মাধ্যমে এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ওইরকম ভাবে তো করতে পারছি না, কিন্তু এই অনলাইনের মাধ্যম দিয়েই আমরা যে করছি, আমরা তাই মানে একটু মুক্তির পথ পেয়ে গেছি। খুব মঙ্গলের কথা, আনন্দের কথা যে এইভাবে আমরা যেমন তেমন যেন কেন প্রকারেণ আমরা ওকে মানে লেগেই আছি, লেগে থাকার যে সুযোগটা আমরা হাতছাড়া হচ্ছি না, এই তাই অনলাইনের মাধ্যমে আমরা করতে পারছি। এই যে আপনারা এত সুন্দর চেষ্টা করে আমরা চলাচলের চেষ্টা করছি। তবে যাই হোক, बता देंगे, शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे। माने शिक्षा, दीक्षा, आचार व्यवहार, गुरु का जो करणीय होता है, जो कर्तव्य है, तभी तो हम लोग जान सकते हैं। गुरु के बिना ये जीवन अधम और अधूरा होता है। गुरु के बिना ये जीवन अधम और अधूरा होता है, ये प्रमाणित है। ये इसके प्रीवियस अवतार में भी देखे, जो भगवान रामचंद्र स्वयं पुरुषोत्तम नारायण थे, भगवान थे, उन्होंने भी गुरु ग्रहण कर करके दिखा दिए हैं। जब कृष्ण रूप में आए थे तभी भी गुरु ग्रहण कर करके दिखा दिए हैं। और हम लोग तो इस युग में कलिकाल में आए हैं, जब गुरु का प्रथा चलता है तो गुरु का निर्देश पालन करके जो होता है, हम लोग रामायण महाभारत वेद पुराण जो भी है, गुरु की जो अवस्था, गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना जाता है शास्त्र वेद में भी। तो इसीलिए श्री श्री ठाकुर जो है गुरु रूप में हम लोगों के बीच में आते हैं। और गुरु रूप में आने से क्या होता है, गुरु शब्द का अगर विश्लेषण करते हैं, उसका अगर सप्रसंग व्याख्या करते हैं, गु शब्द का होता है अर्थ अंधकार, और रू शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से आलोक की ओर लिए जाते हैं। अंधकार से जो अलौकिक, ये गुरु मन अंधकार से आपकी ओर ले जाते हैं। अज्ञान जो है, अज्ञान से ज्ञानता की ओर ले जाते हैं, ये गुरु कहलाते हैं। ये गुरु को परिभाषा है।
इसीलिए वाणी में श्री श्री ठाकुर जी की एक ठो वाणी में हम बांग्ला में है, ट्रांसलेट कर देंगे। विपाक पथे हाथ धरे जे चलार कायदा जानिए दे ताकेई जानिस गुरु बोले अभय पथे से ही तो नहीं। अर्थात जब हम लोग नहीं पाते हैं, भला बुरा समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, मन विपथगामी जब हम लोग हो जाते हैं, उस समय हाथ पकड़ कर करके खींच करके जो सही रास्ता में ले जाते हैं, जो दिखाते हैं यही सही पथ है, यही उनको ही गुरु कहा जाता है। तो गुरु का काम वही है। हम लोग का गुरु का शब्द मैंने पहले भी जैसे रामायण महाभारत के युग में भी हम लोग देखे थे वर्णाश्रम का बात, आश्रमिक बात। महाभारत में देखिए पांडव लोग जो थे वो गुरु का आश्रम में जाते थे। रामायण में भी बहुत सारा ऋषि मुनि लोग का आश्रम था, उसमें जाते थे और उनका चेला जो होते थे, भक्त होते थे, उनका गुरु का निर्देश छोड़कर दूसरा काम ही नहीं जानते थे। कुछ उनको समझ ही नहीं था, सिर्फ गुरु ही समझ में आता था, गुरु ही विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। इसीलिए शास्त्र में भी कहा है, ठाकुर जी के वाणी में भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु सर्वपति है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही माता पिता आदि, और गुरु उनसे भी परम ब्रह्म, उनसे भी ऊपर है, ऊपर से ऊपर। कहे कि ऐसे गुरु का प्रणिपात करते हैं। युग पुरुषोत्तम जो आए हैं श्री श्री ठाकुर, वही सर्वोपरि, उसका ऊपर में और कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ सर्वोपरि है। उनके हिसाब से ही हमारा दुनिया चलता है। हम लोग जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने अपने पथ के हिसाब, मत के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, समाज में जीवन यापन करते हैं। जो भी हो, युग पुरुषोत्तम जब इस धराधाम में आते हैं, उनका बचने और बढ़ने का पथ दिखाते हैं। इसके पहले जब एक ठाकुर जी को एक बार प्रश्न किया गया था, बोलता है कि ठाकुर जी आपको तो पुरुषोत्तम कहते, सब लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रेरित पुरुष कहते हैं, तो अब जब राम रूप में आए थे तो आप रावण का वध किए थे। ये जो दुराचारी सभी दानव मन सभी देवताओं को भी माने कष्ट से वो लोग त्राहिमाम जब करते थे, उनको आकर कर रक्षा के इधर रावण का वध किए थे। जब उसके बाद आए आप कृष्ण रूप में जब आए थे, तभी भी आप कंस के दुराचारी राजा कंस के अत्याचार से लोगों को माने आप मुक्ति दिलाए थे, उनको वध कर करके। अब इस युग में पुरुषोत्तम रूप में श्री श्री ठाकुर जी के रूप में आए हैं, अब किसका वध करेंगे? तो श्री श्री ठाकुर जी कहते थे कि उस समय तो एक ठो कंस हुआ करता था, एक ठो रावण हुआ करता था। ये वर्तमान कली काल, मैंने पहले ही कहा था विशृंखल युग है। इस कली काल में घर घर में रावण, घर घर में कंस पैदा हो गया है। तो अगर हम शारीरिक रूप से उसको वध करते हैं, हम लोग कोई नहीं बचेंगे, सारे मारे जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सब पापी हैं। हम लोग का रावणत्व, कंसत्व हम लोगों में, हमारा देह में, शरीर में, मन में विलीन हो गया है। तो इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं, ये जो अभी जो धराधाम में अभी हम लोग जो इस कलिकाल में हम लोग जीवन बसर कर रहे हैं, सारे लोगों के भीतर में जो रावणत्व है, जो कंसत्व है, ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है, ये जो रिपु है, पाप प्रवृत्तियां जो हैं, उनको हम मारने के लिए आए हैं, उनको नाश करने के लिए आए हैं। तब क्या होगा? हमें एक मनुष्य में जो दुर्गुण को अगर नाश कर देते हैं तो हम मुक्ति पा जाते हैं, मनुष्यत्व हासिल करते हैं। तो इसलिए हम उसको मारने के लिए आए हैं। हम कोई तीर धनुष और इसमें हम सुदर्शन चक्र से हम किसी को गला रहते नहीं आए हैं, और उसमें जो है हमारा दुर्गुण जो है, हमारा जो पाप प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को जो है हम नष्ट करने के लिए, इसको मारने के लिए हम आए हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी एक तो बांग्ला में वाणी है, धर्म जोखन विपाक बाहने व्यर्थ अर्थ धाई प्रेरित तो पुरुष आविर्भूत हन पापी परित्राण पाई। अर्थात ये अब तो रामायण में ही है, जब जब हो ही धर्म की हानि, वो वाला बात आप लोग सब जानते ही हैं। तो उसी अवस्था में ये प्रेरित पुरुष बात होकर करके उनका दिया हुआ अवदान को बचाने के लिए लेते हैं, अवतार लेते हैं, आते हैं संसार में और उनको जो है बचाते हैं। कैसे हम लोग का धर्म का अर्थ क्या क्या निकाल लेते हैं,
लोग बोलते हैं पूजा पाठ करने से धर्म होगा, तो मैंने क्या बोलते हैं बोल बम में कांवर ढोने से धर्म होगा, और क्या क्या कितना तो देवी देवता का पूजा करना इत्यादि, तो बहुत सारा घटना है, उतना करने से हम लोग बोलते धार्मिक हो गए हैं। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ इत्यादि करते हैं, धर्म हो जाता है। तो श्री श्री ठाकुर जी धर्म का परिभाषा उसमें दिखे, सबको बचाना, अपने बढ़ना, उसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते, ये सिखाने के लिए आए हैं। अब विपक्ष मन हम लोग का धर्म करते दूसरा में लगा के हम लोग दूसरे रास्ते में जाते हैं, तो उसको रक्षा करने के लिए आते हैं। तब प्रेरित पुरुष आविर्भूत होते हैं और बोलते हैं पापी को परित्राण करने के लिए आते हैं। हमारा भीतर में जो दुर्गुण है उसका दुर्गुण को नाश करने के लिए हम आते हैं और उसको सगुण बनाने के लिए आते हैं। इसीलिए ये सत्संग का प्लेटफॉर्म गढ़ दिए हैं हमारे बीच में, इसीलिए इनका नाम रखे हैं सत्संग। सत्संग का डिफिनेशन होता है मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, मनुष्य तैयार करने का कारखाना, ये सत्संग है। ये सत्संग के प्लेटफॉर्म में आने से मनुष्य तैयार किया जाता है। जैसे तैयार कारखाना बोलने से हम लोग का मीनिंग कुछ दूसरा हम लोग सेंस में ले लेते हैं, जैसे कोई स्टील प्लांट हुआ, कोई आयरन, जैसे टाटा कंपनी, बिरला कंपनी और इस्पात कंपनी, इसका हम लोग ये करते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोहा को तैयार किया जाता है, लोहा मिट्टी से, लोहा पत्थर से गला के, लोहा सांचा में ढाल के, जिस तरह से छड़ बनाइए, पत्ती बनाइए, जो भी बनाइए उसको इस तरह से तैयार किया जाता है, उसको कारखाना बोला जाता है। लेकिन हमारा देह को कहाँ किस फर्मा में ढालेंगे, किस और कैसे तैयार करेंगे। तो इसलिए युग पुरुषोत्तम उनको सत्संग का प्लेटफॉर्म जो गढ़ दिए हैं, इसमें हमारा मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए, हमारा परिष्कृत करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए इस सत्संग का प्लेटफॉर्म गढ़ दिए हैं। उसमें यदि हम लोग को डाल दिया जाता है तो हम लोग सही में मनुष्य तैयार हो जाता है। मनुष्य का मतलब हम लोग हाड़ मांस रक्त देह का जो शरीर हम लोगों को मिला है, ये तो मनुष्य हम लोग कहलाते हैं इसे देखने के लिए, किंतु हमारा मनुष्य में मनुष्यत्व है कि नहीं, इसको जांच परख करने के लिए वही गुरु के पास जाना होता है। गुरु होता है दर्पण, आईना रूपी। जैसे हम लोग एक आईना में, जैसे हमारा चेहरा को देखने के बाद पता चलता है कि हमारा चेहरा में कुछ कालीमा, कुछ दाग उग लगा है कि नहीं, जैसे ही आईना के पास जाते हैं, आईने को देखते हैं, तो झट से हमारा रुमाल में हमारा इसमें कोई पसीना मैना हम लोग महिला को पोंछ देते हैं, पता चल जाता है, झट से आईना बता देता है। उसी तरह से हमारा जीवन चलन में हमारा जो मनुष्यत्व है, हमारा शरीर में मनुष्यत्व है कि नहीं, वो गुरु को ग्रहण करने के बाद ही हम लोग को पता चलता है। इसके पहले हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो अपने हिसाब से सब कुछ काम करते हैं, ठीक ही करते हैं, कोई हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग अच्छा है बुरा है क्या है। तो इसीलिए एक तो बानी है, सदगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला तब छूटे जब आग करे प्रवेश। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ये सप्त मंत्र रूपी आग को हमारे बीच में प्रवेश करने के लिए बोले हैं, तो पता चलेगा कि हमारा मनुष्यत्व कहाँ है क्या है। उसमें अगर टटोला जाएगा तो उसमें हमारा सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। तो उस आग का झोंक में झांकने के लिए बोल रहे हैं युग पुरुषोत्तम। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें सत मंत्र जो है ये बीज मंत्र है, ये अग्नि है, उसमें अगर हम लोग को दे देते हैं तो उसमें हम लोग अपना असल रूप में करते हैं। हमारा सोना गलाने के लिए जैसे सोनार के पास जाते हैं तो पता नहीं चलता है, सोना पीतल एक जैसे देखता है, कौन सोना है हम लोग पहचान में नहीं आता है। हमारा भीतर में कितने मनुष्यत्व है हमको पता नहीं चलता है। उसको जब आग में डाला जाता है सोना गलाने के लिए तो वो बोलता है इतना % खाटी सोना है, इतना %। अगर मान लीजिए 10 कैरेट माने 10 ग्राम का हम लोग उसमें डालते हैं तो प्योर माल हमारा 7 ग्राम निकलता है, तो 3 ग्राम भेजाल था वहां पर वो निकल गया है। तो इसीलिए प्योर सोना में उसको डाल देने से एकदम प्योर जब खाटी सोना हो जाता है उसको हम डालने के बाद पता चलता है। उसी तरह से हम लोग इंसान, हम लोग जब जन्म लिए हैं संसार में, धराधाम में, मर्त्य भूमि में, हम लोग एक दिन तो जाना ही है। मर्त्य भूमि इसलिए कहा कि हम लोग मनुष्य रूप में देह धारण किए हैं तो एक दिन जाना ही है। तो जो भी है मर्त्य भूमि में हम लोग जन्म लिए हैं, तो हमारा भीतर में कितना मनुष्यत्व है, कितना परफेक्टनेस है, कितना ह्यूमैनिटी है, क्या क्या है, इसको जानने के लिए वो सदगुरु आते हैं, वो भेद बता देते हैं। तो उसको भेद क्या बताएं, ये एक सत्संग का प्लेटफॉर्म गढ़ दिए हैं। ऐसे गुरु को तो माने बहुत सारे अभी अगर जाते हैं संसार में तो हजारों गुरु मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे कि आपको कोई कुल किनारा नहीं है। गिन के
कितना ऋषि मुनि हम इसमें है। तो जो भी है, अभी वर्तमान में हम लोग को जो सदगुरु को ग्रहण करना है। अब सदगुरु को कैसे पकड़ेंगे, कैसे क्या पहचानना है? वर्तमान में आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, कोई कमी नहीं है। हमारा विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, फिर इस युग में हम लोग को ठाकुर जी को पकड़ के कैसे कैसे चलेंगे, हमारे जीवन को कैसे सुधारेंगे, हमारे मनुष्यत्व को किस तरह से हासिल करेंगे, तो इसमें हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आता है। इसीलिए गुरु के पास जाने से, उनका दया से, उनका आशीर्वाद से, उनका वाणी से अगर हम लोग उसको अमल करेंगे, 101% श्योर कि हम लोग जो है मनुष्यत्व हासिल कर ही लेंगे। इस संबंध में एक घटना मुझे याद आता है। एक बार एक उड़ीसा का एक विद्वान थे, बहुत बड़ा इंजीनियर थे, वो बहुत विद्वान आदमी थे। तो हमारा उड़ीसा का भक्त लोग, गुरु भाई लोग जो है, ये लोग भी कम नहीं है। उन लोग को ऐसे जाजन के प्रक्रिया में जाते थे, तो जाजन करते करते उनको समझा नहीं पा रहे थे। बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा शरीर गठन के लिए प्रोटीन, विटामिन, मीट, मछली सब चाहिए ही चाहिए, क्या क्या नाना तरह का प्रश्न कर रहे हैं। आजकल के तारीख में ये लॉकडाउन जो पेंडेमिक सिचुएशन, इस तरह में देखिएगा, जितना भी मना किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से कि मीट मछली नहीं खाना है, सादा भोजन करना है, उसको क्या बोलते हैं, कोविड का रूल्स फॉलो करके चलना है, उतना ही लोग उल्टा कर रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि बाजार में नहीं है तो माने मुर्गी और पोल्ट्री और ज्यादा बिक रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जो भी है, तो उस तरह से उड़ीसा के एक दादा थे, उनका नाम है प्राण कृष्ण परिडा, उनका नाम थे, बहुत बड़ा इंजीनियर थे। तो उनको बड़ा बड़ा हमारा ऋतिक दादा लोग भी समझा नहीं पा रहे थे। तो उनको क्या हुआ, बोलता है कि नहीं, हमारा तो कोई भी चीज का समाधान तो है, हमारा सत्संग में दुनिया का कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान है। तो ठाकुर जी बोलते हैं, सर्व समस्या का समाधान जानो इष्ट का प्रतिष्ठान, ठाकुर जी का वाणी में है। तो सभी समस्या का समाधान इष्ट का प्रतिष्ठा करने से है। तो हम लोग तो इष्ट का प्रतिष्ठा अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन उस दादा को समझा नहीं पा रहे थे। बोले, दादा एक बार आपको ठाकुरबाड़ी चलना ही होगा, वहां ठाकुर जी से मिल के आइए, दीक्षा लीजिए, नहीं लीजिए कोई बात नहीं। तो ऐसे ही उनको किसी तरह से छल बल कौशल से उनको ले गए ठाकुर जी का आश्रम में। ऐसे ही ठाकुर जी का कुछ भक्त लोग बैठे हुए थे, उनका भक्त लोग बैठे हुए थे। बैठने के बाद फिर उनको क्या हुआ कि प्रश्न पूछा गया कि ठाकुर जी को प्रणाम सब किए, बैठे थे। तो दादा भी उनको, प्राण कृष्ण परिदादा भी वहां पर बैठे हुए थे। उनको पूछा गया, जैसे कि प्रणाम पाती हुआ, जब आंखों में आंख मिल गया तो ठाकुर जी उनको पूछे थे, बोले कि आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। तो वो सोचा कि हम तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियर की है, हमारा सवाल जवाब हो कि इंजीनियरिंग माने साइंस के विषय में वो बोलेंगे, क्या होंगे उसका हम जवाब दें। ऐसे प्राउडली वो बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं कि दादा, आप कभी मार्केट में जाते हैं, बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं ना? बोले क्या? उनका मन में हुआ कि क्या उठपटांग बात कर रहे हैं, हमारा इंजीनियर है, अब ये है धर्म कर्म, इसका करने के लिए हम सोच रहे थे, इस सब्जी मार्केटिंग का बात कर रहे हैं क्या ठाकुर जी? ऐसा मन में हो सकते। फिर भी जब उनका प्रश्न किया गया था, उत्तर में उनको बोलना पड़ा, हाँ जाते हैं। जब जाते हैं तो दुकान में सब्जी खरीदते हैं, तो 1 किलो आलू अगर खरीदते हैं तो आपको क्या परखते हैं आप? बोलते क्या है, 1 किलो आलू खरीद के उसको जितना होता है 20 रुपया 10 रुपया जो है पैसा दे के ले आते हैं, ऐसे ही उनका घमंड से बोल रहे हैं। तो बोलते हैं और क्या देखते हैं? बोलते और क्या देखेंगे, 1 किलो आलू खरीद के ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बोलता है 1 किलो आप जो बोल रहे हैं, 1 किलो आपका ठीक हुआ कि नहीं? मान लीजिए आधा किलो आलू आपको दे दिया तो आप 1 किलो को पैसा दे। नहीं नहीं नहीं, वैसा कैसे होगा, हम देखते हैं ना। क्या देखते हैं? वो तराजू का जो कांटा है ना, सही उसमें लगा है कि नहीं, ठीक ठीक किधर झुक रहा है किधर नहीं झुक रहा है, उसको देखते हैं कि नहीं? हाँ वो तो देखना ही होगा ना, बिना देखे कैसे खरीदेंगे? कांटा देखते हैं, ठीक 1 किलो हुआ कि नहीं? बोलते हाँ देखते हैं। बोलते ठीक, जो हमारा मनुष्य जीवन का जो मार्केटिंग हम लोग जो चल रहे हैं, हमारा जीवन सही पथ में जा रहा है कि नहीं, कौन उचित कौन अनुचित क्या कर रहा है, इस कांटा को कभी आप नजर दौड़ाए हैं? हमारा जो मनुष्यत्व है, हमारा शरीर में कितना % मनुष्यत्व है, कितना पाप पुण्य है, इसको कभी आप दर्शाए हैं? बोलते
साइलेंट होके बोलते हैं कि नहीं, इसको तो नहीं दर्शा है। यही बात है, बोलता है कि उसको भी दर्शना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं अपने हिसाब से तो हम ठीक ठाक है। हमको भी परीक्षा निरीक्षण कभी करना हमारा शौक में, जैसे हमारा ब्लड शुगर है कि नहीं, क्या नहीं है, डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं ना अभी कभी कभी, तो हाँ वो तो करना ही पड़ता है। तो उसी तरह हमारा मनुष्यत्व के हिसाब से जो हमारा है शरीर में कितना है, उसको कभी तौल मापदंड उसमें लगाए हैं? बोलते नहीं। तो उसको कैसे लगे? बोलते उसके लिए आप तो रामायण सुने हैं, महाभारत सुने हैं, वेद पुराण जितना भी सुने हैं, गुरु का नाम उसमें तो सुने ही होंगे, हैं गुरु मंत्र। हाँ, ऐसे हम लोग का तो होता है, वो गुसाई गुरु जो होता है वो साल में एक बार आता है, और शादी में इसमें कुछ होता है दक्षिणा उक्षिणा दे देते हैं गुरु ऐसे। तो बोलते हैं वही तो, माने साल में अगर एक बार आता है, आपका क्या तो होता ही नहीं होता, गुरु आपका क्या खबर लेते हैं, नहीं पता नहीं चलता आपका कहाँ तक मनुष्यत्व हुआ, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से एक तो जीवन में वही बोले भगवान राम कृष्ण ने गुरु ग्रहण किए हैं, हम लोग क्या होते हैं उनके सामने पुरुष। तो बोलते हैं हाँ, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया हमको, कोई हमको बता ही नहीं इसमें गुरु। इसीलिए बोलते हैं गुरु ग्रहण करना चाहिए, बिना गुरु का हमारा जीवन अधम और अधूरा होता है। तो इसलिए गुरु ग्रहण करने से आप जो भी करिए ना, आप बहुत बड़ा इंजीनियर है, कुछ भी है, गुरु को शरण कर करके, गुरु को बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसे, तो समझ में आया। वहीं से दीक्षा लेकर के लौटे और परम भक्त हुए, ठाकुर जी का बहुत सारा उड़ीसा में काम किए थे। यही होता है गुरु, इसका माने हम लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे करके हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी समझ नहीं होता है। हम जो बता रहे थे मैन मेकिंग स्पीचेस, मनुष्य तैयारी करने का कारखाना जो होता है, उसको माने ठाकुर जी हमारा खांटी मनुष्य करने के लिए, हमारा ऐसे हम लोगों का जैसे दुष्ट इंसान को माने सही मनुष्य बनाने के लिए है, मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो बोल रहे थे उसको तैयार करने के लिए उसको कर दिए हैं। कितने आप लोग तो जानते ही हैं, कितने दुष्कर्म वाला मनुष्य, कितना डाकू, कितना चोर, कितना चूहा, कितना खराब मनुष्य जो है हमारा ठाकुर जी के सानिध्य लाभ करके, उनका स्पर्श पाने के मात्र से जो इतना सुंदर सुंदर, इतना जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो गया है आप लोग तो जान ही रहे हैं। फिर भी मैं छोटा छोटा एक आध उदाहरण हम पेश करना चाहता हूँ। एक जैसे होता है शराबी था, एक गुरुभाई था, आप लोग जानते हैं उसके विषय में, फिर भी जो नहीं जानते होंगे तो उसके विषय में थोड़ा सा संक्षेप में, जो कैसे करके मनुष्य तैयार करते हैं, ठाकुर जी की प्रैक्टिकल किस तरह से करवाते हैं हम लोगों को। तो एक बार जो एक तो शराबी था, इतना शराबी था कि घर द्वार छोड़ना पड़ा। उनका पति, उनका पिता ऐसा मन विरक्त हो गए हैं कि ऐसा बेटा हमारा रहना नहीं रहना बराबर है। इतना अगर कोई एक बेटा के प्रति सोच सकता है तो समझ सकते हैं, एक पत्नी यदि अपना पति को बोलता है ऐसा पति रहना नहीं रहना समान बात है, ऐसा पत्नी यदि कहता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनका बिगड़ चुका है जो भी है। तो ऐसे ही करते करते घर से भटक गए। जाने के बाद रास्ता में जाते जाते कोई एक आदमी बोल रहा था, रास्ता में सुने कि बोलता है कि एक ठो देवघर में एक ठो बोलते हैं कि बाबा आए हैं, वो जो बोल देते हैं वही करते हैं, जो भी जाते हैं उनको आदर सहित जो है उनको खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं, बहुत अच्छा मानो सुने हैं कि बहुत अच्छा, जो भी जाते हैं उनको अपना लेते हैं, ऐसे ही सुने हैं। तो उनका तो सुनते सुनते गए थे, तो खोजते 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 माने वो आदमी को खोज में पहुंच गए। एक बार उनका नाम था हेम कवि, आप लोग सुने ही हैं। तो हेम कवि एक बार जो आश्रम पहुंच गए तो ठाकुर जी जो वहां पर बैठे हुए थे उनको खड़ा होकर आलिंगन करने के लिए तैयार होंगे, आओ 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 मेरे सामने आओ, तुम्हारे लिए ही तो हम इंतजार कर रहे थे, अभी आओ, तुमको ही हम राह बाट देख रहे थे। तो बोलते हैं उसके बाद फिर ये तो पियक्कड़ था, एक ही तो भेष पहना था, पागल जैसे, चूल दाढ़ी सब बढ़ा हुआ, एकदम पागल जैसे दिख रहा था। और उसके बाद बोले रुकिए रुकिए, हम कितना दिन से नहाया नहीं है, हम क्या नहीं है, अशुद्ध हो गए हैं, हम मत छुए मत छुए। बोलते आओ कोई दिक्कत नहीं है। बोलते यहाँ पर तो वो थोड़ा जब जैसे देखे कि अरे हमारा जैसे आदमी को हमको इधर चीतू करके आदमी भगा देता था, ये आदमी जो है हमको इतना आलिंगन कर रहे हैं, कुछ तो यही है क्या। तो उसके बाद उनको भक्त लोग को बोले तुरंत जाओ, इसको नहला धोला के नाई के पास ले जाके के दाढ़ी उड़ी चोल बना के और उसको माने नया कपड़ा पहना के आनंद बाजार में उसका प्रसाद ग्रहण करके शाम को हमारे पास ले आना। वैसे ही लोग जुट गए, उनको वैसे ही चूल दाढ़ी उसको कटवा के उसको माने नहला के साबुन उबन से बढ़िया से, ऐसे तो देह में गोरा नारा था ही, चूल दाढ़ी जब कट गया तो और थोड़ा सुंदर एक नया कपड़ा पहना एकदम चिक चक से एकदम
बढ़िया, और पढ़ा लिखा तो था ही। तो आने के बाद ठाकुर जी के पास तो मैंने उसका प्रणाम किया, ठाकुर जी लोग बैठे, क्या बात है? बोलते हैं कि ठाकुर जी हमारे भीतर में एक तो दुर्गुण है। क्या है? बोलते हैं कि हम शराब पीते हैं, इसीलिए हमारा घर द्वार से विच्छेद हो गया है। बोलते हैं क्या? बोलता है, बोलता हाँ हाँ शराब, दारू पीते हैं। तो बोला कि ठीक है दारू पीता है, कोई बात नहीं, दारू मिल जाएगा तुमको, तुम यहाँ रहो, तुमको दारू भी मिल जाएगा, सब कुछ ले जाएगा, मेरा पास में थोड़ा यहाँ बैठेगा। तो बोला दारू मिलेगा? बोलता हाँ दारू तो बोलते तुम्हारी इच्छा है तो मिल जाएगा। तो बोलते अरे वाह, बोलते दारू मिलेगा? वो 5 बार पूछा कि दारू मिल जाएगा हमको यहाँ भी? बोले हाँ दारू मिलेगा। ओह, तब तो बोलते यही स्वर्ग है, इसके लिए घर द्वार त्याग गया, माँ पिताजी बहन बेटा और पत्नी का त्याग किया, वही चीज इसको वहां प्राप्त हो गया। तो ठाकुर जी बोला अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही करते करते जब वहाँ दारू भी उनको मिलता था, आश्रम में रहता था, आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण करके वहां रहने लगा। तो जब बाजार जाता था, कोई बाजार वाला देख लिया था उसको कि भाई आश्रम में दारू जाता है, तो बाजार वाला लोग ऐसे उन लोग संगोष्ठी किया, बोलते अरे ये आश्रम भंड तपस्वी है, ठाकुर उकुर कुछ नहीं है, ये दारू जाता है, ये लोग मजलिस करता होगा, इसको ठाकुर जी को भगाना होगा इस तरह से। तो ऐसे ही कैसे करके ये बात तो उधर घूमते टहलते हो गया था, तो सुन लिया। जैसे वहां से सुन लिया और अरे बोलता है कि अरे ये तो आश्रम में तो कोई दारू नहीं पीता, हम ही पीते हैं, मेरे लिए ही ठाकुर जी दारू मंगाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं बाप रे बाप, इसको हम भगवान मान लिए हैं, ये हमारा इतना हमको रेस्पेक्ट दिए, हमको अपना लिए, इससे छोड़कर तो हम जी ही नहीं पाएंगे, मेरा जीवन तो अंत हो ही गया। और इसके लिए दारू के लिए उनको ठाकुर जी को इसे प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो इस सोचते 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 जो है आके एकदम सरेंडर हो गए, साष्टांग गिर गए ठाकुर जी के पांव तले और बोला कि ठाकुर जी क्षमा करिए, आज से हम दारू नहीं पिएंगे। बोलते अरे क्या हुआ उठो उठो उठो, क्या हुआ? बोलते नहीं, पहले हमको क्षमा करिए, हमको समझ में आ गया है कि दारू क्या चीज होता है नहीं होता है। उसके बाद बोलता अरे कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पिएगा तो नहीं पिएगा। बोलता है कि अरे बाप रे बाप, ठाकुर जी का प्रणाम किए, साष्टांग किए। बोलता है कि ये दारू के चलते इतना प्रताड़ित, इसीलिए सब उनको दारू का माने दुर्गुण से समझ में आ गया उसका क्या क्या होता है, तो इसीलिए बोला नहीं पिएंगे। बोला अच्छा ठीक है। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोलता माँ पिताजी है, पत्नी है, मेरा बच्चा है। बोलते सब है, तुम उसको छोड़ दिया घर में, याद नहीं है? तो बोलते है ठाकुर जी बहुत याद आता है, लेकिन आपका प्यार पाके, आपका स्नेह पाके और इस हमारा यही स्वर्ग लगता है, यहाँ से यार जाने का मन ही नहीं करता है। कैसे जो आपका माने एक बार जब आपको हमको जिंदगी भर यही रखे आपका पाँव तले। अच्छा ठीक है, तुम एक बार तेरा पिताजी माँ पत्नी उसको देख के आओ तो थोड़ी। बोलते अच्छा हाँ ठीक है दादा, जाएंगे, तब आपका इच्छा होने से जाएंगे। तो ठाकुर जी भक्त लोग बोले उसके लिए जो है कपड़ा, उनका माँ के लिए कपड़ा, उसका पिताजी के लिए कपड़ा, उसका पत्नी के लिए साड़ी, उसका बच्चा के लिए ड्रेस और घर के एक मिठाई संदेश पैक कर करके जो है उनको भेज दिए थे। उसके बाद जो है ठाकुर जी उसको विदाई किए। जैसे ही घर में आए तो घर में जैसे आते हैं, जैसे कोई मेहमान आया हुआ जिसके उसका पत्नी पहले देखी उसको पहचान नहीं सक रही। बोलते हैं तो चूल दाढ़ी ऐसे ही पागल एकदम सुंदर गोरा नारा एकदम हैंडसम होके जैसे आ रहे हैं घर। बाद में उनका पति है, इतना दिन संगलाप किया है तो पहचान गई। तो बोलते हैं अरे रे, बोलते हैं उनका सास ससुर की माँ पापा देखो कौन आए हैं, इनका बबुआ का नाम लो, उनका पापा आए हैं ये घर में हैं। वो लोग निकले, बोलते अरे आ लौटा देखे चंडाल ठो कैसे होके आया है, हाँ क्या कोई माने कोई जख्मी होके आया है, क्या हो गया? जैसे घर से निकल पड़े, ये तो एकदम राजा आदमी जैसे दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। तो यही इतना खुश हुए, इतना, तो उसके माँ पिताजी गदगद हो गए, रो पड़े। उसका पत्नी माने आपका ये परिवर्तन किसने किया? कौन ऐसा आदमी है संसार में जो हमारा बच्चा को ऐसा सुधार दिए? कहाँ क्या है? हम उनके दर्शन में जाएंगे। ऐसे ऐसे वो लोग सोचने लगे कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो एक मनुष्य को जीवन में इतना परिवर्तन ला सकता है? यही जो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी, यही इसी को बोलते हैं मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन, मनुष्य तैयार करते हैं। और भी बहुत सारा घटना है जो भी है। जैसे आप लोग एक बार तो इसका घटना आपका शायद आप लोग सुने ही होंगे। एक तो जोगेश्वर दा का घटना आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वो कितना मर्डर किया था उसका कोई हिसाब नहीं था। एक बार जो उन्हीं भूले भट के आश्रम में आ गए, ठाकुर जी का पकड़ में जब आ गए तो ठाकुर जी के पास रहने लगे, सरेंडर होकर ठाकुर जी उसको शरण दिए। बोलते अच्छा ठीक है,
तो कुछ काम बोलता है, तुम कुछ काम करेगा? बोला हाँ। बोलता है जो आनंद बाजार में जो है ना, वो एक इसमें ये करेगा, प्रसाद ये करेगा। वो भी ब्राह्मण आदमी था। तो उसके बाद जो है वो आनंद बाजार में प्रसाद ये कर रहा है। उसके बाद एक भक्त आया, उसका जो है ये कर रहा था, ठाकुर जी के सामने आया। तो ठाकुर जी के सामने आने के बाद ठाकुर जी का बोलता है कि ठाकुर जी के गुण के बारे में मैंने ये बोलता है कि आपकी दीक्षा लेने से क्या होगा, मनुष्य परिवर्तन होता है, क्या होता है, नहीं होता है। इसमें जो है मैंने समझ में नहीं आता है वो परिवर्तन कैसे होगा। तो ये जो है पीसी सरकार एक बार आए थे आश्रम में। तो पीसी सरकार बोलता है कि उसका जो है जादू का जो विश्व माना विख्यात माना इंडिया फेमस तो था ही, तो वो जादूगर दिखाता है। उसके बाद बोला है कि ठाकुर जी वो समझते थे कि जादूगर का भाषा में बात करता है। तो ऐसे करते 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 जब बात हुआ तो उसमें बोला कि ठाकुर जी आपका इसमें क्या ऐसा मिराकल है जो माने आपको मन ये करते हैं, आपका सत्संग में जो लोग इतना लोग आता है, माने सब लोग आपको माने छोड़ नहीं पाता है, क्या मिराकल आप दिखाते हैं? तो क्या जादू दिखाते हैं? हम तो पूरा भारत भ्रमण कर करके लोगों को इधर उधर कर करके जादू दिखाते बुलाते हैं। तो जब बोला कि इसका उत्तर आपको हम थोड़ा देर बाद रुकेंगे, बैठिए, आप वहां जाके वो आनंद बाजार में जो प्रसाद मिलता है वहां जाइए, तो जोगेश्वर दा करके है, उनसे मिलिए, पता चल जाएगा। तो जब ऐसे ही वो गए तो वो बाल्टी पकड़ के खिचड़ी मैंने वो परोस रहा था। वहीं पर जब गए जाने के बाद उनसे बातचीत हो रहा था, तो बोला कि भाई, बोलता है क्या माना ठाकुर जी आपके पास भेजे हैं और क्या इसमें? बोलता है कि क्या बोलेंगे, ये जो हाथ देख रहे हैं इसमें कितना मर्डर किए हैं, इसमें बोलता है को भी हाथ में अन्न महाप्रसाद ये वितरण कर रहे हैं। देखिए हम उसमें ये हाथ क्या बदल हाथ का काम में कितना परिवर्तन आया, इसी में सोच सकते हैं। बोलते ऐसा क्यों? बोलता है ठाकुर जी के सामने आने से, उनका एक नजर से नजर मिलाने से, उनका बात मेरा कान में गुंजने से, उनका इशारा, उनका कुछ काम पालन करने से जो परिवर्तन आता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं इतना परिवर्तन कर देने का। तब पीसी सरकार को लगा कि मेरा जादू तो साला व्यर्थ हो गया, इसके फेल मार गया। जो भी है वो भी ऐसे ऐसे मैंने ये हो गया है। और बहुत सारे और भी लोग भी परिवर्तन हुए, कितने चोर, कितने गुंडा कीर्तन के माध्यम से कितने लोगों को मन सुधार दिए हैं, कितने आदमी को ठाकुर जी माने अपना कर्म में लगा कर करके नियोजित कर कर करके उनका जीवन सुधार दिए हैं। उनका कहना ही क्या, माने ऐसे युग पुरुषोत्तम होते हैं, वो माने उनका लीला और परंपार है, उसको बोलने से भी शेष नहीं किया जा सकता है। अगर दिन रात उसका गुण कीर्तन करते रहे तो भी जो है उनका लीला कीर्तन कुछ नहीं होगा। युग पुरुषोत्तम के बाद जो काम करते हैं वो प्रेमी है, परम प्रेमी है, तो ये करते हम लोग उसमें पड़ जाएगा। माने इतना प्रेमी पुरुष है कि वो हम लोग मनुष्य ही क्या पशु पक्षी से भी इतना प्यार करते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग छोटा छोटा एक तो उदाहरण हम लोग बताते हैं पशु पक्षी का, कीट पतंग से लेकर करके स्टार्ट करते हैं। कीट पतंग का मतलब एक बार ठाकुर जी इसमें बैठे हुए थे, ठाकुर जी बैठे हुए थे, उसमें एक तो जैसे लकड़ी का डंडा था, छोटा गड़ा हुआ था, छिपकली जो है ऊपर और नीचे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो सब भक्त लोगों का जो वहां पर बैठे हुए थे उनका नजर पड़ गया। उसके बाद जो है ठाकुर जी का नजर पड़ गया और आंखों भक्त लोगों से भी ठाकुर जी का आंख मिल गया। उसके बाद ठाकुर जी बोले कि मुंबई से जो है इसका दूल्हा आ रहा है, शादी होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ देर के बाद कुछ भक्त लोग कुछ पेटी लेकर करके ठाकुर जी के पास प्रणाम किए। तो बोलते हैं कि यार पेटी में क्या लाए हो? बोलते खोलो, पहला पेटी ठो, तो बोला उसमें आम है। बोले दूसरा पेटी तो खोलो, इसमें बोलता है कि इसमें केला है, इसमें ड्राई फ्रूट है। और एक ठो पेटी है, उसको खोलो तो उसमें लीची है। ऐसे उसको जैसे ही पेटी ठो उसको खोले, एक तो छिपकली उस पेटी से जंप करके सरसरा के चला गया और पहले से जो छिपकली एक तो मन ऊपर नीचे हो रहा था उसके साथ मिल गया। देखिए उसका मिलन हो गया। अंतर्यामी ठाकुर जी जान रहे थे कि वो लीची का
पेटी में एक छिपकली आ रहा है, तो उनका भी वो लोग जान रहे, पशु कीट पतंग का भी जान रहे थे। और जो है एक बार पक्षी के बारे में एक तो उदाहरण बता रहे हैं, जो ऐसे ही एक बार पार्लर में बैठे हुए ठाकुर जी के पास पेड़ था, उसमें तो पक्षी उसमें पहले तो घोंसला में भी बच्चा दे देता था, घोंसला नहीं बना के खोल जो होता था गाछ का, बड़ा सा पुराना गाछ का खोल हो जाता, उसी में बच्चा दिया था। और उस दिन जो है डेली पक्षी तो अनाज लेकर करके आता था और बच्चा को उसको बच्चा दिया होता था खिलाता था। उस दिन क्या किया, वो पक्षी तो पूरा डेना मेल कर करके उसके बच्चा को माने छोटा छोटा बच्चा पक्षी को उस रख के उसमें एकदम सिहर रहा था। कुछ देर के बाद जो है वो माने रोने लगा, चिल्लाने लगा, ची 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 कर करके चिल्लाने लगा। तो उसका माने चिल्ला उसका आवाज जो है ठाकुर जी के पास पहुंच गया। ठाकुर जी के पास जो कुछ लोग भक्त, हम लोग तो नहीं जानते थे, ठाकुर जी जानते हैं, वो अंतर्जामी होते हैं। तो उसके बाद जो बोलते है कुछ पत्थर ढेला लेके जाओ, तो बोलते है 4-5 तो, और उसमें वो गाछ के तरफ फेंको। तो पत्थर फेंका, 2-3 तो फेंका, बोलते क्या कुछ देखा? बोलते नहीं, कुछ तो नहीं देखा। और ठाकुर जी क्यों फेंकवाते हैं? बोलते गाछ में मारो तो ढेला, तो मारा, कुछ नहीं। बोलते फिर से मारो, 5वां पत्थर जब मारा तो उसके बाद देखा कि बोले कुछ देखा? बोले हाँ, एक तो पक्षी जो बाज पक्षी होता है वो पक्षी का शिकार करता है, तो शिकार करता है तो पक्षी जो उड़ के चला गया, बाज पक्षी। तो बोलते हाँ, तब ठाकुर जी दीर्घ निश्वास लेकर करके बोले अब बचा पाए। कहने का मतलब उसमें जो है वो बच्ची, वहां का जो पक्षी उड़ जाएगा, जैसे ही भागेगा तो वो पक्षी का छोटा छोटा पक्षी को बाज पक्षी खा जाता है उसको। ये ठाकुर जी माने कितना माने पैनी नजर रखते हैं ठाकुर जी, इस तरह से उनको भी बता लिए। वो पशु पक्षी का भी जानते थे, और पशु का तो आप जान ही रहे थे। एक बार ठाकुर जी घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, बैठे थे, जब घोड़ा को चाबुक पर चाबुक मार रहे थे तो वो जैसे ही घोड़ा उह करके उठते थे ठाकुर जी, घोड़ा पर पीठ पर चाबुक मारता था, ठाकुर जी सिहर देते थे। जो भी है घोड़ा गाड़ी से उतर कर जब घर गए, नहाने का समय हुआ था, तेल मर्दन का, भक्त लोग देखे कि अरे ठाकुर जी का पीठ में ऐसे लाल लाल सा चाबुक का दाग कैसे करके आ गया था। जब पूछा गया तो बाद में पता चला कि वो घोड़ा को जो चाबुक लगा रहा था उसका देह में ठाकुर जी का दाग आ गया। तो माने पशु से भी कितने प्यार करते हैं, उनका दर्द को अपने ऊपर लोग लेते हैं। यही है जो पुरुषोत्तम प्रेमिक पुरुष, पशु को भी कितना प्रेम करते हैं। एक बार एक आश्रम में एक तो बकरी पाली हुई थी, एक माँ, वो बकरी को जो बेचा गया, कसाई उसको ले जा रहा था, तब उसका जो है उसका मैं करके इतना रो रहा था कि समझ में नहीं आता था। माने किसी को इतना माने मैं कर रहा था, ठाकुर जी माने वो चींची पक्षी का आवाज सुनाई पड़ रहा था और मैं कर रहे थे, उसको बकरी का आवाज भी पहचान जाते थे। हम लोग कुछ नहीं पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए माने हम लोग आदमी का बात जानते हैं और जिस एरिया में जो उसका सानिध्य लाभ करता है, उसका निकट में रहता है, उनका भाषा समझ जाता है। जैसे एक माँ अपना बच्चा रोता है तो उसको दूध पिलाने को जान जाती है कि उसको भूख लगा है, बच्चा को दूध पिला लेती है, वो समझ जाती है, कहे कि वो लगाव माँ से ज्यादा है। एक तो माने 100 गाय के बीच में भी एक बछड़ा को छोड़ दीजिए तो 100 गाय में से अपना माँ को ढूंढ लेता है एक तो बच्चा, उसमें लगा हुआ है उसका माँ, और उसमें जो प्यार इतना प्रेम होता है उस 100 गाय में से वो अपना ही माँ को ढूंढ लेता है एक तो छोटा सा बछड़ा। उसी तरह से जिसमें जो अंतर प्रेम है उसको ढूंढ ही लेता है प्रेमिक पुरुष। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर इसी तरह से सारी बातों को जान लेते हैं। वैसे ही बकरी को मैं करके ले जा रहा था तो बाद में बोला कि इतना कि कैसे रो रहा है, वो मैंने पुकार रहा था कि अब तो मेरा गया जान, कसाई हमको काट देगा, बचाओ भगवान। वो भगवान को अपने भाषा में मैं करके पुकार रहा था। जो भी है तो उसको एक भक्त को ठाकुर जी पैसा दे के भेजे कि जाओ बकरी को खरीद के ले, जितना भी खरीदाओ उतना से ज्यादा पैसा दे के खरीद के ले आओ। तो उसके बाद जाने के बाद उससे फिर बकरी तो जो है खरीद के ले आए, तब ठाकुर जी देर के निश्चय बच्ची मन चुप हो गया बकरी तो। इसीलिए ठाकुर जी पशु पक्षी जीव सारा चीज को जानते हैं, इसीलिए ठाकुर जी की सानिध्य लाभ अगर करते हैं, ठाकुर जी का अगर निर्देश पालन कर चलते हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो अपने ठाकुर करते हैं। एक तो बांग्ला में हम लोग बोलते हैं बानी, उसको हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं, भावछो बसे चलबे कि भाबबार तुमी के, भाबबार जिनी भाबछेन तिनी तुमी भाबो ताके। अर्थात
बैठ के सोच रहे हो कैसे मेरा चलेगा संसार, तो ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम सोच रहे हो कैसे संसार चलेगा, तो जो संसार चलाता है तुम उसको सोचो, वो संसार तुम्हारा चला देगा। हमारा संसार कैसे चलेगा, हम अपने सोचने से हम लोग कुछ नहीं कर, बोलते हैं जो चला तो उसको सोचो, वो हमारा संसार चला देगा। यही बात है जो माने प्रेमिक पुरुष जो है, तब उसको अगर एकदम सानिध्य लाभ अगर हम लोग करते हैं तो ही हम लोगों का जो है जीवन सार्थक होता, हर समस्या का समाधान होगा। बड़ा बड़ा दुख दारिद्र, ये वर्तमान पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे हम लोग बचे बढ़े, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। जो आचार्य देव का निर्देश है तो उसी हिसाब से पालन करें, हम लोग बचेंगे। उनका निर्देश अगर नहीं पालन करने से तो हम लोग नहीं ये करेंगे। ठाकुर जी बोलते ना करे जे पेते चाहिए दुख होता हर पीछे पीछे न धाए, नहीं करके जो पाना चाहे दुख तो उसके पीछे धाए। हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट का है काम है इष्ट लागी कर्म कोड़ा सही तो हलो पुण्य भरा। इष्ट के लिए जो कर्म करते हैं वही कर्म जो पुण्य से भरा हुआ होता है, उसका छोड़कर बाकी साजे बाजे होता है। इष्ट का जो कर्म है, इष्ट कर्म में अगर हम लोग रहते हैं तभी हम लोग समस्या का समाधान हो जाता है, हर क्षेत्र में मंगल होता है। इस संबंध में एक छोटा सा घटना बता के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जो भी है, एक बार ठाकुर जी के एक भक्त था, परम भक्त था, उनका क्या बोलते हैं कि मुसलमान भक्त था, उनका नाम था खलीलुर रहमान। वो जो है ना अपने माने क्या बोलते हैं IAS मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उस समय का बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो ठाकुर जी एक बार पूछते हैं कि खलीलुल तुम जो है तुम 5 बार नमाज पढ़ता है कि नहीं? बोलते नहीं ठाकुर 5 बार कहाँ पढ़ पाते हैं, सुबह में कर लेते हैं और शाम वाला घर आके कर लेते हैं, बाकी 3 बार नहीं पढ़ते हैं। ऑफिस में जाने से इतना व्यस्त रहते हैं कि एकदम टाइम ही नहीं मिलता है, ऑफिस में इतना बिजी रहते हैं। ठाकुर जी क्या करें, कोई उपाय बताइए। बोलते हैं अरे तुम हायर अथॉरिटी को लिखो, नमाज के लिए एक तो चिट्ठी लिख दो और तुम तो परमिशन दे देने से तुम खाली नमाज तो ही पढ़ेगा और क्या करेगा, बाकी सब काम करो। बोलते हाँ ठाकुर ठीक बोले, वही दिया तो उनका एप्लीकेशन दिया, उन लोग सुन लिया, उसको 5 बार उस दिन समान पढ़ने लगा। जो भी है एक যুগ পুরুষোত্তম আমাদের এসেছেন, আমাদের আর ভয় নাই, এই যে সৎসঙ্গের বিধি বিধান দিয়েছেন, আর কিছুই নেই। ওই যেমন শরৎদা আমার বারবার বলেন যতই যা বলুন ভাষণ ভূষণ ওই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওইখানেই আসে আমরা যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি সদাচার, যতই আমরা যা কিছু করি ওই যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি সদাচার, এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে। কিন্তু এইটাই খাঁটি জিনিস, সেইগুলাই তো আমরা যেমন খাচ্ছি, আমরা বাঁচে থাকার জন্য হ্যাঁ ভাত ডাল তরকারি রুটি, তারপরের দিন ভাত ডাল তরকারি রুটি, ভাত ডাল তরকারি রুটি, এইগুলো খেয়ে খেয়েই তো আমরা বাঁচে থাকছি। হ্যাঁ, সেই যেটা আমাদের আহার্য আমাদের নীতি, সেইটা ঠাকুর আমাদের পরিষ্কার ক্লিয়ারিফাই করে দিয়েছেন যে কোনটা করলে মানে খান পান পরিধান আমাদের সমস্ত কিছু তিনি আমাদের মানে পার্টিকুলারলি তিনি মানে নির্বাচিত করে দিয়েছেন। তো এইভাবে আমরা যদি তার নীতি নিয়ে মেনে করে চলে থাকি তাহলে আমাদের কোন সৎসঙ্গের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এইটা যে আমরা ঠাকুর যা বলেছেন সেইটা পুরো করি, তাহলে তিনি খুশি হন। তিনি যদি খুশি হন তাহলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকে না, আমরা সুখের শান্তির জীবন, তিনি একবার আমাদের কাছে নজর যদি বুলিয়ে দেন তবু আমরা সুখের শান্তির জীবন যাপন করতে পারি। কেননা তাছাড়া আর কোনো উপায় না, মানে একমাত্র তার নির্দেশ পালন ছাড়াই বর্তমান যুগের বাঁচার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। ওই ঘুরিয়ে ফিরে যে বললাম যজন যান ইষ্টবৃত্তি, এই যে যজন যান ইষ্টবৃত্তি এইটা করাই আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। তবে যাই হোক, এই সৎসঙ্গ জীব জগতে যাটুকু দেখা যাচ্ছে, সর্বপ্রথম আমি বলছি তার সাথে লেগে থাকার কথা, যেন কেন প্রকারণ এই যে অনলাইনের সৎসঙ্গের মাধ্যমে একে অপরকে জানতে পারছি, বুঝতে পারছি, ভালো আছে। যেমন এই শরৎদা হয়তো এখনই আমাকে ফোন করলেন, তো এই যে আমাদের একটা ভাব ইয়ে হয়ে গেল আমাদের নিজের, আমি কোনোদিন দেখি না শরৎদাকে, আমি জানিও না, এই অনলাইনের মাধ্যমে যা হোক পরিচিত হয়েছে, কিন্তু এই যে একটা ভাব, এই যে মানে আপনপন মানে নিজত্ব একটা বোধ হচ্ছে, এই হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ, এইটা যে ভালোবাসার লক্ষণ, তাকে মানে ঠাকুরের মানে নির্দেশ পালন করলেই আমরা চলে থাকি। তো সেই জন্য ভক্তি ভাবে প্রেম ভাবে তার নির্দেশ পালন করা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে ইষ্টভৃতি। আমি তো বারবার এই কথাটাই আমি আগেও বলেছি যে এই ঠাকুরকে আমাদের বাঁচতে হলে এইটা হচ্ছে বাঁচার কাজ। ঠাকুর বলছেন বাঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে
তো থাকে আমাদের যা যা লাগে সেটাতে আমাদের অনেক কিছু লাগে, তবে এই প্রথম কর্মটা হচ্ছে ইষ্টভৃতিটা নিখুঁত ভাবে করা লাগে। এই ইষ্টভৃতি ছাড়া আমরা কিন্তু ঠিক ঠিক আমরা বাঁচতে পারবো না। তার সাথে এই আগে এই ইষ্টভৃতির কথাটা অন্য জায়গায় আছে, সবকিছু আছে, তবে আমরা রেগুলারলি এমন খান পানের কথাটা আছে, আমরা যদি একদিন খাই দুদিন না খাই আমরা বাঁচতে পারবো না। সেই জন্য একদিন দিলে হয় না, রেগুলারলি মানে ঠাকুরকে ইষ্টভৃতি যদি দেন তাহলে ঠাকুর বলছেন দেওয়াই পাওয়ার জননী, না দিয়ে যে পেতে চাই দুঃখ তাহার পিছনে ধায়। আমরা ওই দিতে যদি না জানি তাহলে পাওয়ার কোনোদিন সম্ভব হতে পারে। সময় তো দাও, আচ্ছা যাই হোক আমি স্পিডে বলার চেষ্টা করছি, 2 মিনিট। কথা হচ্ছে একটা গুরু ভাই ছিল, সে কোনোদিন ঠাকুরকে দিতেন না, তারপরে সেই সব দিন ঠাকুরকে দেন না কোনোদিন, সে সব সময় ঠাকুরের কাছে নিয়ে নিয়ে খায়। তবে যাই হোক একদিন ওরা পতি গল্প করেছেন যে বলছেন ঠাকুর কিছু দেওয়া লাগে, তার ঘরে কিছু নাই, তার ঘরে একটা কলাখান্দি ফলেছিল, সেই কলাখান্দিটাকে তিনি বলছে এইটা হলো দেওয়া যাক। যাই হোক ছোট মোটো একটা কলা তুলে নিয়ে ঠাকুরকে যখন তিনি দিতে আসলেন, তো ঠাকুর এমন খুশি হলেন, এত খুশি ভক্তরা কোনোদিন দেখেছিলেন না ঠাকুরকে এত খুশি হওয়ার কথা। তখন যিনি ওই ছোট কলাটা দিয়েছেন, ঠাকুর বলছেন এই দেখো তো একটা আসন পেতো, একটু টেবিল রাখো, একটা করাছেন কেউ জানে না, ভক্তরা বসে আছে, তার নাম এখন নফর। সেই নফর আসবে, তাকে ওই কিছু অর্ঘ্য দিবে, মানে ওই কেলাটা নিয়ে এসছে যে ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য। ঠাকুর তিনি বুঝতে পেরেছেন। যাই হোক যখন তিনি দিয়েছেন এত খুশি, আরে বাহ, যেমন কোনোদিন তিনি কেলা দেখেন না। এই কলা এই যে কাঁচা কলাটা একটু কেকড় মেকড় কলাটা যেমন তেমন দিয়েতে উনি লজ্জিত হচ্ছে যে ভালো একটু দিলে হয়তো, ছোট ছোট কেলাগুলো দিয়েছি, তো উনি লজ্জিত হচ্ছেন। কিন্তু ঠাকুর এত খুশি, এত জাহির করছেন, এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে কোনোদিন যেমন সে কেলা দেখেন না এইরকম ভাবে, আরে বাহ কি সুন্দর, এত সুন্দর, আরে বাহ কি করে দিলি, কোথায় হচ্ছে, কোথার বাড়িতে ফলেছে, কি হয়েছে, কত রকম জিজ্ঞাসা ওই ছোট্ট একটা কেলা দিয়েছে। যে মানে এমন ভঙ্গিমা ঠাকুর এত গ্রহণ করার ক্যাপাসিটিটা তার কাছে নিলে, মানে এমন ওই গ্রহণ যে করেছেন নিলেন, তা মানে এত সুন্দর মানে নাটক করে দিয়েছেন যা সে জনম জন্মে আর ভুলতে পারবে না। ঠাকুর ভঙ্গিমা দিয়ে এত খুশি হয়েছেন, তার হৃদয় মানে ভেদ করে যায়, এত খুশি হয়েছিলেন। আর যাই হোক তাকে নিয়েছিলেন। তারপরে ভক্তরা স্থির থাকতে না পারতে প্রশ্ন করলেন, ঠাকুর আপনাকে কত কত জিনিস কে আনি দিয়েছে, আপনাকে এত খুশি হওয়া জীবনে কোনোদিন দেখি না, এর কারণ কি? তখন বলছে ওই যে বললেন শালা দিতে তো শিখেছে, হ্যাঁ ও কোনোদিন দেই নাই তো, প্রথমবার দিয়েছে, শালা দিতে তো শিখেছে। যাই হোক এইবার এই যে দিতে শিখেছে, ঠাকুর বলে দিয়েছেন দেওয়াই পাওয়ার জন্য নি, না দিলে যে পেতে যায় দুঃখ তার পিছনে, ওর কাঙ্গাল দরিদ্রতা দূর হয়ে গেল। তারপরে করতে করতে ওর বাড়িতে একটা কলা বাগান হয়ে গেল, ওনার সুসম্পন্ন পরিবার চলতে লাগলো। যাই হোক এই দেওয়া মানে পাওয়া, ঠাকুরের এই দয়া। তো যাই হোক আপনার মানে আজকে আমার বলার মতো সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই আমি আজকে আর বিশেষ বলছি না, এটুকু বলেই আমার বাণীকে বিরাম দিচ্ছি। জয় গুরু।